नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's start today's video. Today's video is a part 2 of personality series which I started with the previous video. If you haven't watched the previous video, I highly recommend you to go through that first and then watch this video. I would like to start this video with the beautiful lines which read, "True sign of intelligence is not knowledge but imagination," said by Albert Einstein. I talked about the personality in the last video and I told you that there are 4 dimensions of human personality, that is PQ, IQ, EQ and VQ. In the previous video, I talked about the physical question, उसको कैसे improve करना है and number of things. In this video, I am about to talk about the intellectual question and उसको कैसे develop करना है, what are the myths present in society regarding the intellectual question and number of things regarding the IQ. So now this IQ test हमने बहुत बार सुना है but we don't know exactly about it. This IQ test was designed by the two France-based psychologists, that is Alfred Binet and Theodore Simon. Now the purpose for designing the IQ test was completely different than the purpose we use today. It was designed to find it out if any student will face difficulty in the higher education or not. मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसी स्टूडेंट को हायर एजुकेशन लेने में या कोई अगला एजुकेशन फर्दर एजुकेशन लेने में कोई डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए आईक्यू टेस्ट बनाई गई थी. बट टुडे वी यूज इट इन अ completely different way. We use IQ टेस्ट एज अ बेंचमार्क, मतलब उसी से हम लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड इट इज वन ऑफ द मिथ्स दैट आर प्रिवेलेंट इन सोसाइटी. तो किसी का IQ टेस्ट का रिजल्ट आपका इंटेलिजेंस या फिर बाकी चीजें डिसाइड नहीं करता है. if you Google, you will find it out that IQ का डेफिनेशन क्या है. दिस इज एग्जैक्ट डेफिनेशन और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज अ मेजर of a person's reasoning ability. Now reasoning ability is nothing but your ability to think logically, मतलब logically चीजों को सोचना, not to get colored with the emotion. इसको हम logical या reasoning ability बोलते हैं. In fact reasoning ability को mother of all the personality qualities भी बोला जाता है. जितनी भी personality traits, personality qualities है, उन सब में सबसे important quality होती है reasoning ability. Now रीजनिंग एबिलिटी अगर हम माइंड को देखें तो योर लेफ्ट पार्ट ऑफ योर माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग. मतलब अगर आप लॉजिकली या एनालिटिकली सोच नहीं पाते हो, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आप सोच नहीं पाते हो एनालिटिकली या लॉजिकली? सिंपली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लॉजिक वगैरह वहां पे मैथ्स वगैरह ढंग से नहीं आता है, या फिर आप स्टूडेंट हो और आपको मैथ्स वगैरह चीजें या फिर फिजिक्स वगैरह चीजें आती नहीं, इट सिंपली मींस आपका जो लॉजिकल थिंकिंग वो जीरो है. और इसका भी और डिटेल में जाके बताओ तो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ढंग से काम नहीं करता है. नाउ होती है, लेट्स सी. Now Howard Gardner, this is Howard Gardner, and he was a psychologist and he gave the theory of multiple intelligence, which I'll elaborate in subsequent videos in details. He said there are 8 types of intelligence. यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा because it's a topic of or it's a topic altogether for the different video. और उसने कहा था कि as culture unfolds, as history evolve, of course the intelligence which they value changes. इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, वैसे वैसे जैसे जैसे सोसाइटी की डिमांड चेंज होती है, वैसे वैसे इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है वो भी चेंज होगी. पहले सिर्फ ऐसा माना जाता था कि इफ यू आर अ पर्सन हु कैन राइट, रीड एंड communicate, you were considered as an intelligent person. But in 21st century, definition of the intelligence is completely changed. अब सिर्फ आपका रीजनिंग एबिलिटी लिखना वगैरह नहीं आता है, बट इसमें अभी आता है इमोशनल इंटेलिजेंस भी. दैट इज नथिंग बट योर EQ. मतलब EQ is very important, which I'll talk in the subsequent videos. So IQ, again I want to tell you that IQ, अगर IQ your marks also doesn't define your IQ. आपका मार्क्स, आपके परसेंटेज,
ये डिफाइन नहीं करते हैं कि आपका आईक्यू कितना है। एंड अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, मतलब किसी को अगर कम मार्क्स है, किसी को अगर कम परसेंटेज है, सो इसका मतलब ये नहीं कि उसका आईक्यू कम है। सो दिस टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। एग्जाम में मार्क्स लाना इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड आपका आईक्यू टेस्ट या फिर रियल लाइफ में परफॉर्म करना इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। Now let's see the question, that is a million dollar question which need to be answered over here is this: does our education system improve our IQ? मतलब क्या आपका एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है, तो क्या ये आपका IQ इंप्रूव करता है? बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू वन रिसर्च। एक रिसर्च मैं शेयर करना चाहता हूँ। few years back there was a test designed by the NASA. नासा के लोगों ने एक टेस्ट डिजाइन किया था जस्ट टू चेक इट आउट द क्रिएटिव एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी ऑफ द नासा साइंटिस्ट. Now when the purpose of that test was fully made, scientists decided what if they gave the test to the students. मतलब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो टेस्ट नासा के साइंटिस्ट के लिए डिजाइन की गई थी, उन्होंने सोचा कि वो टेस्ट हम स्टूडेंट्स को देते हैं. एंड व्हेन दे गेव इट टू द स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स वर completely astonishing. मतलब it completely blew my mind when I came across the research and the result. Now उसे creativity test बोला गया था. If we see that a student or a kid between in the age of 5, if there is a student of age 5, he is 98% of the students of age 5 fall into the category of genius when it comes to imagination के कैटेगरी में अगर हम देखें. एंड 30%, अब जैसे ही आपका एज बढ़ता है आप देखना कि आपके परसेंटेज जीनियस की कैटेगरी में लोग कम आते हैं. मतलब 30%, जैसे ही 15 की कैटेगरी में देखो एज 15 12%, एंड एडल्ट अगर देखो तो ओनली 2% एडल्ट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ जीनियस. व्हाट डज इट इंडिकेट? इसका मतलब I know the most genius person in this world is children, child. सबसे जीनियस लोग कौन होते हैं? बच्चे. जो छोटे बचपन में आप और मैं, हम जो सब लोग बचपन में होते हैं, वो टाइम पे हमारा माइंड इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड वो समय हमारा क्रिएटिविटी एट द पीक होता है. बट जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, जैसे जैसे हम स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम एजुकेशन लेना स्टार्ट करते हैं, हायर डिग्रीज की तरफ जाते हैं, हमारा क्रिएटिविटी जो है, थिंकिंग लेवल है, वो जो कम होता है. आई नो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, बिकॉज रियल लाइफ में अगर आपको परफॉर्म करना है, क्रिएटिविटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द 21st सेंचुरी. मतलब क्रिएटिविटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको 21st सेंचुरी में सर्वाइव करना है. बट इस रिसर्च को अगर हम देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम तो आपका क्रिएटिविटी को पूरा तबाही कर दे रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स सी इन ऑल डिटेल्स की क्या एजुकेशन सिस्टम और कौन सी चीजें हैं जो हमारा आईक्यू को डिस्टर्ब करती है और क्रिएटिविटी को डिस्टर्ब करती है. Now the same question, does your education system improve your IQ, can also be answered by thinking in this way. ये तो आप डिसाइड करोगे. इसका आंसर देने के लिए पहले तो आपको खुद को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि why did you study? आपने पढ़ाई क्यों की थी? या फिर अगर आप अभी भी पढ़ते हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट, why have you been studying? इसका आंसर जो होगा that will determine whether आपका IQ बड़ा है, आपका रीजनिंग एबिलिटी ठीक है, आपका लॉजिकल थिंकिंग ठीक है या नहीं. I'll tell you, most of the time we don't study to learn something new. We study to get through the examinations only. हम पढ़ते हैं सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए. And I know that most of you will resonate with me whatever I am saying. क्योंकि मैंने और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज इंडिया में जो प्रेजेंट है, वो सब लोग यही करते हैं कि बस जितना पेपर में आता है उतना पढ़ो एंड आगे बढ़ते रहो. दैट एंड यही अगर आपका अप्रोच है तो आपका IQ कभी भी डेवलप नहीं होगा. एंड आई हैव फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस व्हेन आई फेस द एग्जामिनेशन लाइक UPSC and interviews like interviews like SSB and all those things. You will never able to come clear this UPSC examination or any competitive examination अगर आपका अप्रोच बचपन में ये स्कूल के टाइम पे अगर आपका अप्रोच ऐसा है कि जितना एग्जाम में आता है उतना पढ़ेंगे, दैट्स इट. दैट्स नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर IQ या फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी, इससे बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होता है. अगर आप पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए करते हो, अगर आप पढ़ाई सिर्फ ग्रेड्स के लिए, परसेंटेज के लिए करते हो, आपका रीजनिंग एबिलिटी कभी भी डेवलप नहीं होगा. एंड इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम में इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा. नो वन विल टॉक अबाउट इट बिकॉज किसी को पता ही नहीं है कि व्हाट इज द IQ एंड उसका डेवलपमेंट कैसे होता है. सो
So make sure that you don't need to study only for sake of going through the examination. मार्क्स के लिए मत पढ़ो, पढ़ो कुछ तो भी नया सीखने के लिए. And when you study, अगर आप सिर्फ what I used to do और number of student क्या करते हैं, जब एग्जामिनेशन होते हैं तो कोई भी टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि क्या ये एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे. Now this very attitude and this very mindset is a problematic thing. अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो कभी भी नहीं आपका आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगा. इनफैक्ट इट विल क्रिएट अ इल्यूजन कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, बट आपका जब आप रियल लाइफ में जब इन क्वालिटीज की जरूरत पड़ेगी तब आपको लगेगा कि दैट एंटायर इल्यूजन विल एक्सप्लोड लाइक अ बलून. दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी. आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं एक क्लास से आगे क्लास जा रहा हूँ. आई कंप्लीटेड माई डिग्री. इनफैक्ट 70% अच्छे मार्क्स के साथ मैंने डिग्री कंप्लीट किया था. And when I came into the real life and I faced the examination, at that time I realized मेरा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है. My IQ was zero because मुझे मैथ्स when I in back in 2015 ना मुझे मैथ्स ढंग से आता था. एग्जाम में मार्क्स मिलते थे, बट मैंने कहा था कि अगर एग्जाम में आपको मार्क्स मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी मत समझना कि आपका IQ, रीजनिंग एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग ढंग की है. आपको रियल लाइफ में जाने के बाद पता चलेगा कि आपका आईक्यू और लॉजिकल रीजनिंग कैसी है. तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि अगर आप स्टूडेंट हो तो अभी भी आपके पास चांस है. नेवर एवर स्टडी ओनली फॉर द सेक ऑफ मार्क्स. यू नीड टू डेवलप अ माइंडसेट व्हिच इज बियॉन्ड मार्क्स एंड एग्जामिनेशन. तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो सिर्फ जो एग्जाम में आएंगे, जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ेंगे, तो आपका रीजनिंग एबिलिटी कभी भी डेवलप नहीं होगा. आई होप you are understanding what I am trying to convey over here. Now just I know that every second person today is preparing for the competitive examination. अब एक ऑब्जर्वेशन, एक चीज आप ऑब्जर्व करना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए आज ऑन एन एवरेज कितने साल लगते हैं. इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल एवरेज, अगर मैं बात करूं मेरे जैसे इंसान की, तो 4 to 5 years कहीं नहीं गए. 4 to 5 years कहीं नहीं गए आपको एक एग्जाम क्लियर करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एंड आपको क्या लगता है ये क्यों है? बिकॉज कोई भी एग्जाम पकड़ लो, आप यूपीएससी पकड़ लो, किसी भी तरीके की एग्जाम पकड़ लो, आपको ऑन एन एवरेज, सिंपली मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ क्यों इतना टाइम लगता है. ये रॉड्स है, राइट? इस रॉड्स को अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये क्या होगा, ये जंग खा लेगा. इन द सेम वे माइंड के जो पार्ट्स यूज होने थे, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मैं आगे दिखाऊंगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद जो लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होना था, वो इंप्रूव हुआ ही नहीं. सिर्फ रट्टा मार के परसेंटेज मिलते गए. एंड जब रियल लाइफ में वी एंटर्ड, वी फेल कि हमारा रीजनिंग एबिलिटी ठीक है, बट एक्चुअली रियलिटी कंप्लीटली अलग थी. हमें यहाँ पे जाके रियल लाइफ में आने के बाद पता चला कि यार हमारा आईक्यू तो कभी डेवलप हुआ ही नहीं. सो रियल लर्निंग स्टार्ट हुई व्हेन वी पुट अ स्टेप आउटसाइड द क्लासरूम. एक्चुअली जो रियल लाइफ में रियल लर्निंग स्टार्ट हुई, पूरा एजुकेशन जब खत्म हुआ तब समझ में आया कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं. सो दिस विल हैपन विथ यू ऑल्सो. तो बेटर यू स्टार्ट चेंजिंग योर अप्रोच. बेटर आपको आपका अप्रोच जो है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो हम बोलते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच. आप भले ही एग्जाम क्लियर कर दोगे पर जिंदगी की लाइफ में आप फेल हो जाओगे अगर आपका अप्रोच वही रहा. अगर आप एक टीचर हो तो आपका एक काम है बच्चों को बताना. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एक काम है कि ऑलरेडी इस अप्रोच को चेंज करना. दैन ओनली यू विल एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू, इट्स नॉट पॉसिबल. नाउ आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि दिस इज द मॉक टेस्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड. ये 10th स्टैंडर्ड का एक मॉक टेस्ट है. आई वाज चेकिंग द 10th स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट पेपर्स. वहां पे मुझे एक पेपर आया. इनफैक्ट मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि दिस इज द पेपर. सर देखो इसमें क्या लिखा है. इसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाई कैट्स एंड बैट्स आर एबल टू सी एट नाइट. अब इसका जो आंसर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ने लिखा है, ध्यान से देखना. दिस इज द आंसर. द कैट्स टू बी मोर पावरफुल टू नाइट, शी आई ट्विंकिंग एट नाइट, to various she reduced to images who came to front side, say meow meow, then they go. Now just imagine this person, yes बच्चा जो 10th स्टैंडर्ड में है उसको ढंग का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नहीं आता है. एंड ये क्यों है? दिस इज द अवर एजुकेशन सिस्टम. अगर ये 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसको ढंग से इंग्लिश भी नहीं लिखते आता है,
एक नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नहीं आता है, वो जिंदगी में क्या करेगा? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? जब उसको रियल एंड वो फेल भी नहीं हो रहा है, बिकॉज फेल नहीं कर सकते एक क्लास से पास में। ये पहले तो क्वेश्चन है कि ये 10वीं तक पहुंचा ही कैसे? अंडरस्टैंडिंग? सो अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहे हो, तो इसका मतलब आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आपको खुद को आपका लर्निंग साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। दिस इज अ ग्रेव मैटर ऑफ कंसर्न। अगर वो तो है। अब दिस इज अ गवर्नमेंट रिपोर्ट नाउ। ये इंजीनियरिंग के बच्चों को टेस्ट दिया गया था, वहां पे 40% स्टूडेंट जो है वो AICTE नाम का एक असेसमेंट टेस्ट होता है, 40% इन मैथ्स में जो है, मतलब सॉरी, मोस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट गॉट लेस देन 40% इन द मैथ्स इन दिस टेस्ट, मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली हम ऐसा मानते हैं, बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू शुड हैव अ हाई डिग्री ऑफ IQ, लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनको मार्क्स क्यों नहीं मिलते? इट्स सिंपली बिकॉज जो IQ टेस्ट है, आप एग्जाम तो पास कर लोगे, बट उसके बाद जो रियल टेस्ट होंगे आपको, उसमें आप कभी पास नहीं कर पाओगे अगर आपका माइंडसेट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू डेवलप अ माइंडसेट which is beyond exam and marks, beyond marks and exam। आपको if you if you confine yourself within the marks, अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो दिस विल नॉट वर्क। ये भी आपके, जो मेरे साथ हुआ, ये आपके साथ होगा, एंड ये आज इंडिया के हर एक बच्चे के साथ हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रेव मैटर ऑफ कंसर्न। तो द क्वेश्चन इज व्हाई मस्ट वी स्टडी? हमने पढ़ाई क्यों करना चाहिए? जब मैं व्हेन आई वाज इन नो इन चाइल्डहुड, जब मैं व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता था, और ये सवाल मैं जब कभी सेमिनार लेता हूँ, सब हर बच्चे से पूछता हूँ, और सबका उनका भी आंसर वही होता है। उनके भी दिमाग में, हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो मैथ्स है, ये जो फॉर्मूलीज है मैथ्स के, इंडेक्सेस के, ये जो थीटा है, इसका मेरे रियल लाइफ में क्या यूज है? आई होप यू विल रेजोनेट विथ मी। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा कि ये इन चीजों का मेरे रियल लाइफ में क्या काम है? ये जो मैथ्स है इसका, फिर ये थीटा, बाकी चीजें, हिस्ट्री वगैरह क्यों पढ़ना है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। मैं बताता हूँ क्यों पढ़ना है। नाउ देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन व्हेन यू स्टडी। फॉर एग्जांपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन है, दैट इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिक, जो मैं रीजनिंग एबिलिटी IQ बोल रहा था। उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग, उसके बाद नंबर ऑफ थिंग्स, एनालिटिकल थिंकिंग, हर चीज के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तब डेवलप होता है जब आप ढंग से पढ़ते हो। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अप्रोच ऐसा है कि जितना एग्जाम में आएंगे उतना ही पढ़ेंगे, तो उतना ही ट्रेनिंग होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर एग्जाम में 10 मार्क का आता है और आप 10 मार्क का पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी 10 मार्क के लिए ही तो डेवलप होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो आप क्या पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर, आप कैसे पढ़ रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर, बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग एनी सब्जेक्ट, यू विल यूज सर्टन मेथड्स, सर्टन टूल्स। अब ये सॉल्व करते, फॉर एग्जांपल आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसको सॉल्व करते टाइम पे कुछ मेथड्स यूज करोगे, कुछ टूल्स यूज करोगे, दैट टूल्स विल डेवलप अ सर्टन माइंडसेट, और वो डेवलप होते समय दैट विल एक्ट एज अ ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड, और वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर, कि पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए मत करो, क्योंकि पढ़ाई इज द ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड। व्हेन यू आर इन स्कूल, अगर आप अभी स्कूल में हो, बेटे ध्यान से सुनना, अगर आप कॉलेज में हो, अभी आप स्कूल में हो, तो डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज दैट इज द ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड। अगर आप सिर्फ एग्जाम में जितना आता है उतना पढ़ोगे, तो आपका माइंड ट्रेन नहीं होगा, एंड यू विल बी कंप्लीटली अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन दैट कि यू आर लर्निंग, आप डेवलप हो रहे हो। नो, यू आर कंप्लीटली अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन, यू आर इन एन इल्यूजन कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है। और आगे जब जाओगे, रियल लाइफ में जब आओगे, तब जब चीजें नहीं मिलेंगी, यू विल बी कंप्लीटली शैटर्ड। आपको ऐसा लगेगा, यू विल कि रियल लाइफ में तो सब कुछ सिलेबस के बाहर का पूछ रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, रियल लाइफ में जो भी आएगा वो सब कुछ सिलेबस के बाहर ही होगा। आई कैन इलेबोरेट द पॉइंट विद दिस एग्जांपल। जैसे MS धोनी, जितना MS धोनी जितना नेट में प्रैक्टिस करते हैं, जितनी अच्छी नेट में प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा ही परफॉर्म्स ऑन द ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड।
इन द सेम वे इफ यू सी हुसैन बोल्ट जितना ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हो ऑफ द फील्ड उतना ही इन फील्ड अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो इन द सेम वे जितना आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करोगे, जो भी चीजें अच्छे से पढ़ोगे, डोंट डू इट ओनली फॉर द सेक ऑफ सेइंग। मतलब कोई असाइनमेंट वगैरह है, असाइनमेंट सबमिट करना है, तो हम क्या करते थे और हर एक स्टूडेंट वही करता है, वी डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। इनफैक्ट हम करते हैं कि असाइनमेंट सबमिट करना है तो लो लो भैया असाइनमेंट इधर का कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट सबमिट कर दो। अब यही रीजन है कि इतनी दिक्कत पैदा होती है आगे जाने के बाद। इफ यू सबमिट द असाइनमेंट एंड इफ यू फुलफिल द वेरी पर्पस ऑफ द असाइनमेंट कि असाइनमेंट क्यों है, इफ यू डू द सेल्फ एनालिसिस आपको क्या चीजें आती है, तो यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशंस लाइक आईआईटी जेईई और नीट या और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको हाई डिग्री ऑफ लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, एंड एजुकेशन सिस्टम इज नॉट डेवलपिंग, and the grave matter of concern is no one is even talking about it. So I hope you understand why you need to study। आपको पढ़ाई क्यों करना पड़ेगा, भले ये काम का नहीं है, आपके थीटा वगैरह अभी जिंदगी में रोल प्ले नहीं करता है, बट इट इज डूइंग अ मोस्ट क्रूशियल टास्क, दैट इज इट इज ट्रेनिंग योर माइंड। That's why the Albert Einstein said that education is not the learning of the fact but the training of the mind to think। तो जो भी आप एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हो अभी, that don't take it lightly, it is a training of your mind to think logically, to develop your creativity। So, and at last, I would like to tell you that that's why I firmly believe I am a student. Not only I, every one of you is a student of an university called life, pursuing a degree called experience. So, all of us are a lifelong learner. In fact, you should become a lifelong learner, because life is the biggest school we have ever attended, and most of us fail in it because we try to copy others without realizing that everyone has a different question paper। So that's it for today guys, I hope you like this video। If you like this video, don't try to subscribe, like and share, this is my YouTube channel। You can also connect with me through the Instagram, this is my Instagram channel, Siddhant Life School। Thank you guys, thank you for watching this video, have a great day ahead।